Good morning, dear students. Till now we have completed introduction of polymers. Then we have gone across the cross-linking, then Kerr reactions. Now we are switching towards reaction of aliphatic pendant group in polymers. So here we are going to see reaction of aliphatic pendant group in polymers and reaction of aromatic pendant group in polymers. यानी एलिफेटिक पेंडेंट फंक्शनल ग्रुप्स या बेंजीन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप्स जो भी है वो एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप देखेंगे एंड एरोमेटिक मीन्स रिलेटेड टू बेंजीन वो वाला हम लोग देखेंगे पॉलीमेरिक ग्रुप. नाउ एज द इंट्रोडक्टरी टाइटल tells you what is pendant group. You must be thinking of the term called as or the word called as pendant. ये तो पूरा आपको समझ में ही आया होगा कि reaction of aliphatic pendant group in polymers. Now what is aliphatic compounds you know other than benzene, okay, that are aliphatic groups. So first of all we are going to see that. Now what is pendant group? Let us further move. Pendant group means, as you know, that it's like a polymeric chain onto which any functional group is hanging over with that is nothing but a pendant group. Let us move further the slides. A group attached to the polymer backbone and present in the repeating unit is called a pendant group. अब यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि पेंडेंट ग्रुप यानी क्या, पॉलीमेरिक बैकबोन है, ओके, उसका स्ट्रक्चर स्केलेटल स्ट्रक्चर है, उसके साथ अगर कोई एलिफेटिक और फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, ओके, रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज पेंडेंट. अब पॉलीमर में तो आपको मालूम है कि मोनोमर्स विच आर रिपीटेड टू गिव अ पॉलीमर्स. So we can define as pendant group as a group attached to the polymer, the group, this one is the group, okay, this one is the group. If a group attached to the polymer backbone, this is a polymer backbone, and present in the repeating unit is called as pendant group, okay. So already we have discussed in the heading that reaction of aliphatic pendant group and reaction with aromatic pendant group, okay. So polyvinyl alcohol will be the example of reaction with aliphatic pendant group, and this is polystyrene, where the benzene ring in the polystyrene, okay, this benzene ring in the polystyrene is called as pendant group. So this is nothing but a pendant group. This is a aliphatic pendant group, okay, and that one is the aromatic. This one is the aromatic. This one is the aromatic pendant groups. So in this lecture we are going to see different type of reactions when polymers when treated with hydroxyl groups or having polymers having like this is a hydroxyl group. We are going to see the polymers. अगर पॉलीमेरिक बैकबोन के साथ अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो वाली रिएक्शंस देखेंगे. फिर यहाँ पे एल्डिहाइडिक प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है, फिर कीटोनिक देखेंगे, फिर एसिडिक देखेंगे, ठीक है. दिस विल बी कमिंग अंडर टू टाइप्स, दैट इज रिएक्शन विथ एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप और दूसरा है रिएक्शन विथ एरोमेटिक पेंडेंट ग्रुप. तो ये दो प्रकार की हम लोग रिएक्शंस देखेंगे. तो इस रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप में कौन से रिएक्शंस होते हैं, फर्दर वी आर गोइंग टू मूव इट, देन फॉर वी विल प्रोसीड फॉर द एरोमेटिक पेंडेंट ग्रुप्स. यानी पॉलीमेरिक चेन के साथ, ठीक है, पॉलीमेरिक चेन के साथ अगर हमारा
बेंजीन ग्रुप अटैच रहने से हम कौन से रिएक्शंस कम अक्रॉस करते हैं वो देखने वाले हैं, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एलिफैटिक, देन अल्डिहाइडिक ग्रुप है या एसिडिक ग्रुप है, इसके साथ हम लोग जब पॉलीमेरिक बैकबोन या चेन अटैच होती है तो हम लोग किस किस प्रकार की रिएक्शंस को कम अक्रॉस करते हैं. लेट अस मूव फर्दर. रिएक्शन ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप. आता आपल्याला हे पाहायचं आहे की रिॲक्शन ऑफ हायड्रॉक्सी ग्रुप आपण घेतल्यावर आपल्याला त्याच्यासोबत आपण सपोज दुसरे रिएजंट्स घेतले तर आपल्याला काय मिळू शकतात. ओके, सो इफ यू सी इन दिस रिॲक्शन वी हॅव टेकन पॉलीविनाइल अल्कोहोल. वी हॅव टेकन पॉलीविनाइल अल्कोहोल and when reacted with isocyanates, okay, we are treating it with isocyanate. Okay, so isocyanates means N triple bond C, this is a linkage, and when this is going to treat, this is a polymeric backbone, and this isocyanate is going to attack the aliphatic pendant group. ठीक है, सो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 2.5 मार्क्स. आपको पूछ सकते हैं रिएक्शंस ऑफ एलिमेटिक पेंडांट ग्रुप इन पॉलीमर्स, तो आप लोगों को ये वाले रिएक्शंस देना ज़रूरी है. अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पॉलीविनाइल अल्कोहल यानी यहाँ जो इथिलीन ये बैकबोन है इसके साथ हमने क्या OH अटैच किया है, तो ये अल्कोहल बन चुका है. और ऐसे ही प्रकार के हम लोग अल्डिहाइड्स यहाँ पे वी आर गोइंग टू चेंज द फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्डिहाइड, देन COH कीटोनिक ग्रुप, and we are treating with different reagents to give a different product. Okay, both will react and give you a product. Okay, the polymer molecules which consist of hydroxyl group in their structure gives the following reaction. With isocyanates, polyvinyl alcohol isocyanate gives you urethane derivative. Okay, so this we get urethane derivative, that is CONHR. This N is getting imbibed in this isocyanate. So this is one of the reaction of hydroxyl group. Next we'll further move with ethylene oxide. ओके, फिर वही है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पॉलीविनाइल अल्कोहल. इथिलीन ऑक्साइड जो है, दिस इज इथिलीन ऑक्साइड. व्हेन ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली यू गेट अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज इथॉक्सी डेरिवेटिव. यानी ये जो इथिलीन ऑक्साइड है इज गोइंग टू ट्रीट विद दिस OH and you get ethoxy derivative. Okay, CH2 and this is going to यहाँ पे जो H है वो यहाँ पे react हो जाएगा and you will get an ethoxy derivative. Further moving, we are going to treatment with acetic anhydride. So polyvinyl alcohol which contains the hydroxyl group reacts with acetic anhydride and sodium anhydrous sodium acetate to form polyvinyl acetate. The whole reaction is going to occur here. So what we are going to get? Polyvinyl acetate, that is COCH3. This is an acetate molecule. So dear students, let us move further. Before moving further, we are just going to again repeat it. क्या क्या देखा हमने? Reaction of hydroxyl group यानी that is aliphatic pendant groups के साथ अगर polyvinyl alcohol isocyanate से react होता है तो हमको यूरेथेन डेरिवेटिव होते हैं. जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं? पेंडांट ग्रुप में हो रहे हैं, यानी हैंगिंग आउट. ओके, पेंडांट यानी क्या? कोई तो ऐसी चीज़ जो हैंग हो रही है. ओके, दैट इज़ नथिंग बट पेंडेंट ग्रुप. सो हम लोग पेंडेंट बोलने से हम लोग ये भी करते हैं कि लाइक हम लोग स्पेशली गर्ल्स और हम लोग चेन पहनते हैं, उसके साथ हमारे पास
ऐसा पेंडेंट रहता है. दैट इज नथिंग बट व्हाट दैट पेंडेंट इज नथिंग बट एनी फंक्शनल ग्रुप और एनीथिंग विच इज हैंगिंग विद द टू चेन्स और वन चेन. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पॉलीमेरिक बैकबोन है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल रिएक्ट हो रहा है और ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप व्हेन रिएक्टेड विद आइसोसाइनेट, द आइसोसाइनेट इज गोइंग टू अटैक दिस गिविंग राइज टू यूरेथेन डेरिवेटिव. Here also we have seen with ethylene oxide, we have just treated with polyvinyl alcohol, ethylene oxide we get ethoxy derivative. ठीक है. Further we are going to proceed about the reaction of aldehyde group. Polymer molecule containing aldehyde group such as polyacrolein reacts with. अभी तक यहाँ पे जब क्या था, OH ग्रुप था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमको कौन सी डेरिवेटिव्स मिली थी, इथॉक्सी डेरिवेटिव मिली, एसीटेट डेरिवेटिव मिली, देन यूरेथेन डेरिवेटिव मिली. अब हमको देखना है, फर्दर मूव कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे पॉलीएक्रोलीन, ओके यहाँ पे C चाहिए स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग मिस्टेक. सो व्हेन दिस पॉलीएक्रोलीन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, दिस इज व्हाट, हाइड्रोक्सिलामाइन, then you get an oxime derivative. What you are going to get? You are going to get an oxime derivative, that is O double bond N. This bonding is nothing but an oxime derivative. Okay, so this is going to attack here. Okay, यहाँ से एक water molecule निकलेगा and then you will get this oxime, polyacrolein oxime derivative. So this is one of the example of the reaction of aldehydic pendant group with the polymeric backbone. So हमने पॉलीविनाइल अल्कोहल देखे थे, अभी ये पॉलीएक्रोलीन चल रहा है. पॉलीएक्रोलीन में हमने विथ हाइड्रोक्सिलामाइन देखा, अभी हम लोग देख रहे हैं विथ फिनील हाइड्राजाइन, Now polyacrolein containing aldehyde group reacts with phenyl hydrazine to form polyacrohydrazone derivative. Okay, so this polyacrolein when treated with phenyl hydrazine, this is phenyl hydrazine, this is a phenyl group, and this N2H4 is a nothing but phenyl hydrazine group. Okay, so as it is hydrazine group, this is as it is attached to this phenyl group, one of the hydrogen is taken out. Okay, so when this polyacrolein treated with phenyl hydrazine, we get polyacrolein phenyl hydrazone derivative. So again it is going to attack this, H2O निकलेगा यहाँ से and will get N double bond N H6H4. So this is with phenyl hydrazine to get the phenyl hydrazone derivative. Further for ketonic, तो बच्चों हमने देखा कि अल्डिहाइड में हमको दो रिएक्शंस देखनी है, कौन सी, विथ हाइड्रोक्सिलामाइन एंड विथ फिनिल हाइड्राजाइन. तो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ हमको कौन सी, ऑक्साइम डेरिवेटिव मिलता है, याद रखना, एंड विथ फिनिल हाइड्राजाइन वी गेट फिनिल हाइड्राजोन डेरिवेटिव. फर्दर मूविंग वी आर गोइंग टू टेक रिएक्शन ऑफ कीटोनिक ग्रुप. अभी तक हम लोग क्या देखे, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीएक्रोलीन. पॉलीविनाइल अल्कोहल में क्या था, इथिलीन ग्रुप के साथ जो हैंगिंग आउट था, या तो जो पेंडेंट ग्रुप था, पेंडेंट यानी जो कि लाइक हैंगिंग आउट या लटकने वाली जो फंक्शनल ग्रुप था, वो कौन सा था, OH था. और अल्डिहाइड में कौन सा था, अल्डिहाइड में था CHO अल्डिहाइडिक ग्रुप. ओके, अभी यहाँ पे देख रहे हैं कीटोनिक ग्रुप में, हम देख रहे हैं कीटोनिक ग्रुप अटैच्ड है कहाँ पे, इथिलीन बैकबोन, पॉलीमर बैकबोन, और फिर से वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ही ट्रीट हो रहा है. ओके, सो यू कैन से दैट दिस इज, अगर इंडिविजुअली बात करें तो दिस इज व्हाट, मिथॉक्सी ग्रुप. ओके,
or methyl ketone you can say COCH3. Okay, so polymer molecule containing ketone such as polyvinyl ketone reacts with, अब यहाँ पे polyvinyl क्यों बोला गया है, because this is n number of molecules comes in poly को अगर designate करना है तो you have to denote it with number of, that is bracket में n. And when this is reacted with hydroxylamine, then you get again an oxime derivative. Again you get an oxime derivative. So here again you see यहाँ पे एक H2O molecule निकलेगा and you are going to get an oxime derivative. Further, reaction of carboxylic acid or group. So polymer containing carboxylic such as polyacrylic acid reacts with NaOH to form polyacrylic acid. Now यहाँ पे हमने polyvinyl ketone देखा था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं COH, that is polyacrylic acid. So polyacrylic acid when react with sodium hydroxide to form a sodium salt of polyacrylic acid. यहाँ भी H2O molecule निकलता है. Now we are going to see about the reactions of amide group. Now this again देखो आप लोग देख रहे हो कहाँ पे चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप जो पॉलीमर बैकबोन को चेंज हो रहा है, OH हुआ, CHO अल्डिहाइड ग्रुप हुआ, विनाइल कीटोन हुआ, देन एसिड हुआ. नाउ हम लोग देख रहे हैं अमाइड ग्रुप, CONH2 ग्रुप देख रहे हैं. और जब ये पॉलीमेरिक बैकबोन को अटैच होता है तो it undergo Hoffman degradation of polyacrylamide. ओके, सो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे H2O निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, डिग्रेडेशन हो रहा है. सो दिस यहाँ पे H2O निकल के यहाँ पे हम लोगों को CnH2 मिल रहा है. ओके, सो यहाँ से पूरा यहाँ पे COOH निकलेगा एसिड डायरेक्टली, दिस इज गोइंग टू NH2. सो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट COH है, सॉरी एक्सट्रीमली यहाँ पे COH निकल रहा है लाइक दिस एंड दिस. ओके, पॉली हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड. तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है, जस्ट रिवाइजिंग रिएक्शन. आई एम टेकिंग द स्लाइड्स बैक. ओके, सो फर्स्टली हम लोग देखे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, पेंडेंट ग्रुप्स देख रहे हैं. सो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप में जब पॉलीविनाइल अल्कोहल यानी OH अटैच रहा तो क्या मिलता है हमको, यूरेथेन डेरिवेटिव. फिर दूसरा है इथिलीन ऑक्साइड के साथ अगर होगा तो इथॉक्सी डेरिवेटिव मिला. यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ हमको सोडियम एसिटेट रिएक्ट होता है तो हमको क्या मिलता है, पॉलीविनाइल एसीटेट. क्या मिलता है, पॉलीविनाइल एसीटेट. ओके, सो यहाँ पे NaOH निकलता है और यहाँ पे ये जो ग्रुप है CH3CO, ये ग्रुप अटैच होता है और ये NaOH यहाँ से निकलता है. दिस इज एन मीडियम. ओके, नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप polyacrylene when reacted with hydroxylamine you get polyacrylene oxide derivatives. दूसरा है polyacrylene with phenylhydrazine we get polyacrylene phenylhydrazone derivative. The next we have seen reaction of ketonic group के साथ देखा, again hydroxylamine हमको मिलता है oxime derivative. फिर अगर उसके साथ CO अटैच होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हमको सोडियम साल्ट ऑफ when treated with sodium hydroxide will give polyacrylic acid. और polyvinyl amide is produced by Hoffman degradation amide के साथ तो हमको यहाँ पे COH मिलता है और यहाँ पे हमको अमाइनो ग्रुप मिलता है.
अमाइनो ग्रुप। लेट अस मूव फॉर द एरोमेटिक पेंडेंट। अभी तक हमने क्या देखे, एलिफेटिक देखे। ओके, नाउ एज सुन एज द टर्म एरोमेटिक पेंडेंट ग्रुप्स बोलने से दिमाग में सीधी सीधी हमारे यही आ जाता है कि रिलेटेड टू बेंजीन। ओके, so polymer with aromatic pendant groups undergo all characteristic reactions of benzene such as, हम लोगों ने बेंजीन में alkylations देखे, halogenations देखे, nitrations देखे, sulfonations देखे। let us see now पॉलीमर के साथ अगर अटैच हुआ है ये एरोमेटिक पेंडेंट ग्रुप तो हम कौन सी रिएक्शंस कर सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड क्लोरीन रिएक्ट्स विद पॉलीस्टायरीन टू प्रोड्यूस पॉलीक्लोरोस्टायरीन। ओके, इट गेट्स क्लोरीनेटेड ना। पॉलीस्टायरीन जो है ये पेंडेंट ग्रुप है बेंजीन। अब इसके साथ अगर रिएक्ट हुआ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, so okay, so what we get polychlorostyrene। okay, so it undergo halogenation reaction, that is polychlorostyrene मिल रहा है हमको। नेक्स्ट वन इज पॉलीनाइट्रोस्टायरीन इज ऑब्टेन बाय द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेशन जाएगा। जैसे बेंजीन नाइट्रेशन होता है वैसे ही पॉलीस्टायरीन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 we get polynitrostyrene. So these reactions are similar that of the organic reactions, but just we have changing the starting product, that is nothing but instead of benzene here we are taking a polystyrene, यानी इसके साथ ये जो है पॉलीमर बैकबोन है इसीलिए ये इस प्रकार रिएक्शंस हो रही है। सो हमको पॉलीनाइट्रोस्टायरीन भी मिल रहा है, यहाँ पे पॉलीक्लोरो हैलोजिनेशन हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है, ये सल्फोनेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ पे हमको सल्फोनेटेड पॉलीस्टायरीन मिलता है। फर्दर मूविंग, ओके, सो दीज आर द रिएक्शंस। सो दिस मच वी हैव टू लर्न। सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे इज रिएक्शंस विथ एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप्स। अगर पॉलीमेरिक चेन है बैकबोन, उसके साथ अगर एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप है जैसे हाइड्रोक्सिल है, तो हमें क्या क्या मिलता है। लाइक वी हैव जस्ट गॉन थ्रू पॉलीविनाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ जस्ट गोइंग बैक टू दिस पॉलीविनाइल अल्कोहल, हमने देखा यूरेथिन आइसोसाइनेट के साथ रिएक्ट हुआ, फिर इथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ तो इथॉक्सी डेरिवेटिव मिला, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट तो एसीटेट मिला, और जब रिएक्शन विद अल्डिहाइड अगर उसको अटैच किया पॉलीएक्रिलीन होता है। जब भी पॉलीमर इथिलीन ग्रुप के साथ अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हुआ तो पॉलीएक्रिलीन होता है। दिस पॉलीएक्रोलीन व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलामाइन यू गेट हाइड्रोक्सी ऑक्साइम डेरिवेटिव, देन फिनिल हाइड्रोजाइन के साथ फिनिल हाइड्रोजोन डेरिवेटिव मिलता है, कीटोनिक ग्रुप के साथ ऑक्साइम डेरिवेटिव है, फिर पॉलीएक्रिलिक के साथ सोडियम साल्ट ऑफ पॉलीएक्रिलिक एसिड, और रिएक्शन ऑफ अमाइड ग्रुप है वो है यू गेट पॉलीएक्रिलामाइड। ओके, पेंडेंट ग्रुप्स अभी एरोमेटिक जो भी बेंजीन के साथ सल्फोनेशन, अल्किलेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन होता है, सेम हैपन्स, ओनली इज दैट वी टेक अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट एज पॉलीस्टायरीन। वी टेक अ polystyrene. This is polystyrene when chlorinated give polychlorostyrene, when treated with nitric acid give polynitrostyrene, when sulfonated or undergo sulfonation you get sulfonated polystyrene. So here we have just ended our reactions of aliphatic pendant groups and aromatic pendant groups. Okay dear students, now so we have just gone through introduction of polymers, then we have gone through cross linking, Cure reactions. Now these reactions of we have undergone polymer reactions also. Now we have seen the speciality of pendant groups, यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर किसी पॉलीमर बैकबोन को अटैच होगा तो हम लोग वेराइटी ऑफ रिएक्शंस हमें मिलती है जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन से बहुत सिमिलर है, सिर्फ इतना है कि उसको यहाँ पे पॉलीमर चेन या बैकबोन के साथ रिएक्ट किया जाता है, और इसी हैंगिंग आउट फंक्शनल ग्रुप को हम लोग उसको पेंडेंट ग्रुप बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड एज इट पेंडेंट ग्रुप्स।
So here we complete the today's topic on reaction of pendant groups of aliphatic compounds and aromatic compounds. Now we are going to further move for the that is plastics, that is which will concern of thermosettings and thermo softening plastics. Okay, so under we are going to study about the एग्जाम्पल्स. ये अभी जो आप लोग पॉलीमर्स पढ़ोगे, नाउ इट हैज़ बीन जस्ट लाइक वॉट एवर यू रेड इन द 12th स्टैंडर्ड, लाइक फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड रेजिन्स है, पॉलीविनाइल प्लास्टिक्स है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो ये अभी के जो इसके बाद के जो भी है कमर्शियल पॉलीमर्स या थर्मोसेटिंग्स, थर्मोप्लास्टिक, नेचुरल, दीज आर ऑल वेरी वेरी ईजी. ओके, द प्रॉब्लम वॉज विद दिस ओनली, जो हम लोग रिएक्शंस ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमेरिक रिएक्शंस जो है वहाँ से हमको इंट्रोडक्टरी पॉलीमर्स भी इजी है, लेकिन जहाँ पे रिएक्शंस ऑफ पॉलीमर्स की बात आती है, हम लोग हाइड्रोक्सिल देखे, अल्डिहाइडिक देखे, फिर उसके बाद हमने क्रॉस लिंकिंग क्या है वो देखे, क्यूअर रिएक्शंस देखे, और ये रिएक्शंस ऑफ पेंडेंट ग्रुप ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक ग्रुप, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था. नाउ जैसे वी विल स्टार्ट अबाउट प्लास्टिक्स, इट्स ऑल एज वेरी वेरी इजी टॉपिक्स. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.